Hello everyone, this is Neha here and welcome back to your channel Health Grooming Lifestyle. So guys, in today's video we are going to see how to do Ardha Matsyendra's Asana. Ardha Matsyendra's Asana or the half spinal twist pose. As the name suggests, it is derived from the name of a well-known yogi known as Matsyendra Nath. Now he was one of the yogi who has practiced this asana. He was the first yogi who practiced this asana. So after his name, this name has been derived. In this video, we are not only going to see how to do this asana, but we will also see how this asana helps in various life aspects also. And later on in this video, we will also see the benefits, the numerous benefits this particular asana offers. So before I start this video, I request you all to subscribe to my channel. If you are new to my channel, please do subscribe it and also hit the all notification bell icon so that you will never miss any latest update from my channel. So guys, without any further delay, let's start the video. First of all, let us understand what this asana means. Ardha Matsyendra Asana, that means the half spinal twist pose. Now this asana, as the name suggests, is derived from the name of a well-known yogi, Matsyendra Nath. He was the first yogi who practiced this asana, and after his name, this name has been derived of this asana. When you are doing this particular asana, what happens? There are 7 chakras present in our body. There are so many chakras present in our body, but there are 7 main chakras present in our body. Now in this, there is Manipura chakra, and this chakra is located here in the navel region. Now the navel region is completely concerned with our digestive fire. Not only the navel region, but this chakra, this particular chakra, the Manipura chakra, is dedicated to the digestive fire, is concerned with the digestive fire. The natural HCl which our body produces is concerned with this chakra. So this chakra is not only concerned with the digestive fire, it is also related with our wisdom. In the spiritual context, अगर अपनी आध्यात्मिक शक्ति की बात करें तो ये जो है बुद्धिमत्ता, इंटेलिजेंस, विवेक, ज्ञान का जो है केंद्र होता है ये वाला एरिया. तो ये एक तरह का जंक्शन का काम करता है. जो मूलाधार चक्र है और जो सहस्रार चक्र है, इन दोनों के बीच का ये वाला जो रीजन होता है एक जंक्शन का काम करता है. अगर आप इसे स्टिमुलेट कर लेते हैं तो आपकी आधे से ज़्यादा, आई वुड से 99% ऑफ योर डाइजेस्टिव इश्यूज़, और नॉट ओनली डाइजेस्टिव, शरीर से संबंधित जितने भी रोग हैं उन सभी का उपचार हो सकता है. तो ये जो एकमात्र आसन है अर्ध मत्स्येंद्र आसना, इफ़ यू प्रैक्टिस दिस आसना रेगुलरली, यू विल सी नॉट ओनली द फिजिकल इट्स फिजिकल इन्फ्लुएंस, बट आपका जो मेंटली आपका जो हेल्थ है वो भी, उसमें भी काफ़ी आप बदलाव देखेंगे. ये आसन करते वक्त कई लोग, आप में से हो सकता है कुछ लोगों ने इस आसन को कर रखा हो या बहुत ज़्यादा दक्ष हों, लेकिन आपको मैं बता दूं, गलत तरीके से किया हुआ सिर्फ आसन ही नहीं, कोई भी काम कभी भी सही तरह से फ्रूटफुल नहीं होता, फलित नहीं होता है. इसीलिए हमको जो आसन करना है वो सही वे में करना है, परफेक्टली होना चाहिए. बिकॉज हमारे जो जॉइंट्स हैं, इस वाले आसन में हमारे जो जॉइंट्स हैं, स्पेशली जो हमारा स्पाइन होता है उसका ट्विस्टिंग, एंड नॉट ओनली दैट स्पाइनल ट्विस्ट इज़ देयर, आपका जो मसल्स होते हैं ना दोस्तों, वो मसल्स पे भी बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ता है. तो आपकी एक एक नर्स नाड़ी, आपकी मसल्स, आपकी मांसपेशियाँ, उनका भी ध्यान रखना ज़रूरी है. तो जो जॉइंट्स हैं उनको भी लेकर सतर्क रहने की ज़रूरत है. तो चलिए शुरू करते हैं. आसन कैसे करेंगे? सबसे पहले तो आपको अपने पैर कुछ सीधे इस तरीके से फैला लेने, बिल्कुल स्ट्रेट इन दिस फॉर्म एज यू कैन सी इन द वीडियो. एंड नाउ जस्ट लेट द ब्रीदिंग प्रोसेस बी नॉर्मल. Inhale and exhalation. Inhale, exhale. किसी भी आसन को करने से पहले आपकी ब्रीदिंग प्रोसेस परफेक्ट होना बहुत ज़रूरी है. अगर ब्रीदिंग प्रोसेस परफेक्ट नहीं है, दिस आसना कैन नॉट बी फ्रूटफुल. सो यू जस्ट हैव टू बैंड द लेफ्ट नी. अगर आप राइट की तरफ से करना चाहते हैं राइट से, बट लेफ्ट वाला सही रहेगा. तो यहाँ से आपको सबसे पहले अपने धड़ को इस तरह से मूव करना है. यू हैव टू मूव दिस योर ट्रंक साइड. यू हैव टू ब्रीथ ऑल्सो. आप लोगों को श्वास पर भी ध्यान देने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है. श्वास लेना है कैसे, आपका जो ब्रीदिंग है प्रोसेस वाइल डूइंग द एंटायर ड्यूरेशन जो है आसना की, उस वक्त आपको ब्रीदिंग पे बहुत ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत है. लोग सांस लेना भूल जाते हैं आसन करते वक्त. सो while moving your trunk you have to breathe and then just put here and just hold
योर काफ, और ये जो हाथ है ये कुछ इस तरीके से पीछे की तरफ जाएगा। आप देख सकते हैं ये इस तरह से जाएगा। एंड नाउ जस्ट ब्रीद नॉर्मली। और आपका जो सर है ना ये इस तरफ, इसको ज़्यादा फोर्स करने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप इतना भी रह सकते हैं तो इतना भी ठीक है, नहीं तो इस तरफ। नाउ अगेन चेंजिंग द पोजीशन, bringing the left knee to your trunk and breathe in। जब आप अपने हाथ को उठाएंगे तो सांस भरना है, and breathe out and just breathe normally, holding your calf and then जितना देर बन सके इस आसन में आराम स्थिति में। ये तो हो गया, दिस वॉज द फर्स्ट वन। नाउ देयर आर डिफरेंट टेक्निक्स रिलेटेड टू दिस आसना, कि जब आप कर रहे होते हैं दोस्तों तो ये बात ध्यान देने की ज़रूरत है कि जो आपके बटक वाला साइड है ना, दिस योर पेल्विक रीजन, योर बटक, इस पर ज़्यादा फोकस करने की ज़रूरत है। आपको कुछ इस तरीके से फोल्ड कर लेना है पैरों को, और इसके ऊपर आपका लेफ्ट वाला जो नी है राइट नी के ऊपर आ जाएगा इस तरीके से, इस फॉर्मेशन पे, राइट। नाउ दिस योर एंकल, आपका जो टखना होता है, टखना नहीं पकड़ सकते तो आप अपने काफ्स को ही पकड़ लीजिए, ठीक है, जो आसानी हो सके, ज़बरदस्ती नहीं करना अपने साथ। नाउ ब्रीदिंग, ब्रीद इन while raising your hand and then breathe out and hold your ankle and moving your trunk। और कोशिश ये करें कि ये जो आपका ये बटक वाला साइड है ना, इट शुड बी लिफ्टेड। अगर आपके बटक्स फ्लेक्सिबल है then only you can do, otherwise this asana cannot be performed perfectly। Now and just put again as I told you in the first technique and just breathe normally। Now in this position you will see that this area, it is something like completely covered with your thighs, so this chakra started activating or get stimulated। इसमें आप जो आपका आज्ञा चक्र है उस पर भी फोकस कर सकते हैं। एक पर्टिकुलर चक्रा पे फोकस करने से वहाँ की उसकी जो एनर्जी है वो स्टिमुलेट होती है, और जब एनर्जी स्टिमुलेट होती है ना गाइस, तो वो उसका असर जो है आपकी बॉडी पर दिखाई देता है। स्पिरिचुअली, फिजिकली, सोशली, एवरीथिंग यू नो गेट परफेक्टेड। And then again change the position and let's do the next one। Moving your trunk, again raising your hand, inhaling and then moving down and breathing normally, exhaling and breathing normally। Now guys, there is third technique, I don't know, maybe you can do it, but flexibility जो है ना इसमें ज़्यादा चाहिए, फिर भी मैं आपको दिखा देती हूँ। दिस थर्ड टेक्निक, इट इज़ लाइक अगेन फॉर्मिंग इन दिस वे। यू हैव टू होल्ड योर थाइज इन दिस वाला जो एरिया है आपका नीज वाला एरिया, और अगेन आपको मूव करना है और कुछ, देन अगेन इनहेलिंग, रेजिंग योर हैंड एंड देन एक्सहेलिंग, एंड आपको हाथ ना इसमें फंसाना है, इसमें फंसाकर पीछे से आपको पकड़ना है हथेली को। यस, आपको हथेलियों को मिलाना है आपस में, पकड़ सकते हैं आप। आगे से पीछे वाला नहीं देख पा रहे होंगे, लेट आई विल शो यू। ये कुछ है, ये कुछ इस तरीके से होता है। अगर आप इसे क्लेंच कर सके, राइट, यू कैन मेक द फीस्ट एंड जस्ट होल्ड लाइक दिस। फॉर दिस योर बॉडी नीड्स टू बी फ्लेक्सिबल। ओके, अगेन फ्रॉम द नेक्स्ट साइड यू हैव टू डू लाइक दिस। ये कुछ इस तरीके से जाएगा, and raising your hand, inhaling and then exhaling, coming forward and putting your hand like this, moving under your thighs and then just clench। अब जितना clench कर सके, यहाँ सारी बात फ्लेक्सिबिलिटी की आ जाती है, कर तो सकते ही हैं सब। जितनी देर तक
इस पोजीशन में बने रहिए। और आपके जो ये टोज हैं ये हमेशा टच होने चाहिए फोरग्राउंड पर, हमेशा ध्यान रखना है इस बात का। Now again releasing, breathe normally. So this is the Ardha Matsyendrara Asana. I have told you all the 3 techniques. Now let's have a look at its benefits. This asana not only stimulates your kidneys, आपकी किडनीज के ऊपर एड्रेनल ग्लैंड्स, जो एड्रेनल ग्रंथियाँ होती हैं, उनको स्टिमुलेट करके एड्रेनलिन का सिक्रेशन बहुत सही ढंग से करता है। आपके पैंक्रियाज का पैंक्रियाटिक जूस, लिवर का बाइल जूस, सबकी सीक्रेशंस को हारमोनियस वे में काम कराता है। नाउ योर डाइजेशन, ऑल द डाइजेशन इश्यूज, वेदर इट इज कॉन्स्टिपेशन, वेदर इट्स योर what we call flatulence or anything related to indigestion, can be cured very easily if you practice this asana regularly and correctly. आपकी जो बैक मसल्स हैं उनमें स्टिमुलेशन होने की वजह से जो सर्कुलेशन है ब्लड का, जो ब्लड फ्लो है वो भी बहुत सही ढंग से होने लग जाता है, जिसके कारण होता ये है आपकी जो लंग्स हैं वहाँ पे ऑक्सीजन की कैपेसिटी इंक्रीज होती है। इससे गाइस लंग्स भी बहुत अच्छे होते हैं। इस आसन को करने से लंग्स सिर्फ आपको ऑक्सीजन ही प्रदान नहीं करता है, आपकी बॉडी में ब्लड प्यूरिफिकेशन का काम भी सिर्फ लंग्स ही करते हैं। जो भी आपके हार्ट से जितना भी ब्लड पंप हो रहा है पूरे शरीर में, उस ब्लड की प्यूरिफिकेशन का काम सिर्फ लंग्स करता है। तो आपकी लंग्स मजबूत रहें तो इस आसन को ज़रूर करना चाहिए। इसके अलावा आपका जो ब्रेन फंक्शन है, आपकी ब्रेन की जो स्टेबिलिटी है उसको इंक्रीज़ करेगा। मेंटल टेंशन हो गया, स्ट्रेस हो गया, कुछ भी है, यानी बॉडी के जितने भी अंग हैं उन सभी को हारमोनियसली वे में वर्क कराने के लिए ये आसन सबसे बढ़िया है। सो गाइज, दिस वॉज ऑल इन दिस वीडियो. If you like this video, please don't forget to hit the like button as it motivates me to make all such kind of videos. And if you're new to my channel or you haven't subscribed to my channel yet, please do subscribe it and also hit the all notification bell icon and share this video to your friends and family members as well and those who really want this video. So guys, चलिए मिलते हैं फिर next video में with something innovative. Till then, bye bye and take care.